السلام علیکم ایوری کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ناول میرا گینگسٹر کیسا لگ رہا ہے؟ آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا آپ کو پتہ چل جائے۔ تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے لالا کی بیٹی کہی تھی، شاذر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو جان سے مار دے۔ سر آپ نے لالا کی بیٹی کہی تھی، یہ بھی لالا کی بیٹی ہے، آپ کو لالا سے انتقام لینا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس کی بیٹی چھوٹی یا بڑی ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ابان لالا کی بیٹی ہے؟ جی سر، یہ لڑکی لالا کی چھوٹی بیٹی ہے۔ ہم نے بڑی بیٹی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر سر وہ بہت ہوشیار ہے، لیکن یہ بہت بے وقوف ہے۔ اسے بس اتنا کہہ دیا کہ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے اور وہ اسے گھر بلا رہے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ چلی آئی۔ سر آپ نے تو بدلہ ہی لینا ہے، کیا فرق پڑتا ہے لالا کی بڑی بیٹی ہو یا چھوٹی؟ آپ کو تو بدلہ لالا سے لینا ہے۔ ابان لالا کی بیٹی ہے، لالا کی بیٹی، میری پرنسس۔ شاذر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اس کے آدمی بھی پریشان ہو چکے تھے۔ سر کو لالا کی بیٹی چاہیے تھی، انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ چھوٹی یا بڑی، ہمیں جو آسان لگی ہم اٹھا لائے۔ لگتا ہے سر کو وہی لڑکی چاہیے تھی، ہم نے غلط لڑکی اٹھا کر ٹھیک نہیں کیا، تو کیا کریں، اسے واپس چھوڑ دیں؟ سر باہر آ جائیں تو پوچھ لیتے ہیں، اس وقت اگر ہم ان کے پیچھے گئے تو ہمارے ٹکڑے کر کے ہمیں کتوں کے آگے پھینک دیں گے۔ اس لڑکی کو بھی یہیں رہنے دیتے ہیں، میری ابان، میری پرنسس، لالا کی بیٹی۔ کیوں اللہ جی ایسا کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ہی؟ ایسا کیوں؟ کتنا مشکل سے پہنچا تھا میں لالا کے پاس، ابھی تو میں راستہ ملنے کی خوشی نہیں منا پایا تھا اور آپ نے منزل ہی چھین لی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی مجھے اتنی اچھی لگی، اور وہ بھی لالا کی بیٹی۔ پہلی بار مجھے کسی سے محبت ہوئی۔ شاذر کب سے بیٹھا شراب پی رہا تھا اور اللہ سے شکوہ کر رہا تھا، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ اللہ جی ایسا؟ وہ لڑکی میری پہلی خواہش تھی، زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے بارے میں سوچا تھا۔ کیوں چھینی آپ نے مجھ سے میری خوشی؟ کیوں چھینی آپ نے مجھ سے میری محبت؟ محبت نہیں، نفرت۔ دشمن کی بیٹی کے ساتھ صرف نفرت کی جاتی ہے، میں بھی نفرت کروں گا۔ نہیں ہے مجھے اس سے محبت، نہیں چاہتا، بدلہ لوں گا، صرف بدلہ۔ جو کچھ اس نے آنے کے ساتھ کیا وہی ہوگا اس کی بیٹی کے ساتھ۔ کیا ہوا اگر غنوہ یہاں نہیں آئی تو آبان صحیح، اب تم میرے بدلے کی آگ بجھاؤ گی۔ اب جو میں غنوہ کے ساتھ کرنے والا تھا وہ تمہارے ساتھ کروں گا، تیار ہو جاؤ ابان حیات خان، تمہاری زندگی عذاب ہونے والی ہے۔ شراب کے نشے میں چور وہ نیچے آ گیا تھا۔ سر ہم غلط لڑکی اٹھا لائے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم اسے واپس چھوڑ کر دوسری لڑکی لے آئیں گے۔ ہمیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ آپ کو لالا کی بڑی بیٹی چاہیے، مجھے لالا کی بیٹی چاہیے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی۔ بدلہ مجھے لالا سے لینا ہے، اس کی بیٹی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب جو کام غنوہ نہیں کر پائی وہ یہ کرے گی لڑکی، لیکن یہ لڑکی 18 سال سے کم ہے، آگے چل کر زیادہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر بعد میں یہ لوگ آپ پر کیس کریں تو ان کی طرف سے کیس بہت مضبوط ہوگا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاذر نے غصے سے اس کی بات کاٹی اور اس کمرے میں چلا گیا۔ وہ ابھی بھی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، اسے آتے دیکھ کر ایک بار پھر سے منتیں کرنے لگی، کھولو مجھے، جانے دو یہاں سے، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا، مجھے یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ اس کی بات پر غور کیے بغیر شاذر اس کی طرف بڑھا۔ اس وقت اس کا صرف ایک مقصد تھا، اپنا بدلہ لینا۔ اپنے بدلے کے سامنے اس وقت اسے اپنی محبت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شش، چلانا بند کرو، یہاں تمہاری آواز سننے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پر صرف میں ہوں جسے تمہاری چیخوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے اپنی انرجی ضائع مت کرو، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے، ابان نے کہا، روتے ہوئے کہا۔ شاذر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ نہ میری جان، ساری زندگی انصاف مانگتے ہوئے ہی رونا ہے، ابھی انہیں ضائع مت کرو۔ اس کے ساتھ ہی شاذر نے اس کا دوپٹہ سر سے اتار کے دور پھینک دیا۔ ایک نشہ تو دوسرا اس پر بدلہ سوار تھا۔ اس وقت شاذر صحیح اور غلط کی پہچان کھو چکا تھا۔ ابان کی چیخیں پوری حویلی سن رہی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا یہاں اسے شاذر کے ستم سے بچاتا۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑ دو، رحم کرو، خدا سے ڈرو۔ ابان کی چیخیں سے ہوش میں لے آئی۔ ہوش میں آتے اس نے ابان کو خود سے دور پھینک دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اصغر، مولوی کا انتظام کرو، بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب کچھ؟ ابان چلا چلا کر بول رہی تھی۔ دیکھو بی بی، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا ہے، ورنہ جس مقصد کے لیے وہ تمہیں یہاں لایا ہے اس کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ذرا سوچو، اگر اس نے اپنا مطلب پورا کر کے تمہیں یہاں سے جانے دیا تو ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگی، اس لیے میری بات مانو اور مولوی صاحب کے سامنے ہاں کر دینا، ورنہ تم نہیں جانتی وہ تمہارے باپ اور بہن کے ساتھ کیا کرے گا۔ اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ تمہارے باپ اور بہن کو مار دے گا، کیا ان کی لاشیں دیکھنا چاہتی ہو؟ اصغر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں پلیز ان لوگوں کو کچھ مت کرنا، تم لوگ جو کہو گے میں کروں گی، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئیں گے، ان کے سامنے اس نکاح کے لیے ہاں کر دینا۔
उस पर उठकर जाने लगा। इसके बाद तुम लोग मुझे जाने दोगे ना? अबान ने पूछा। वो फैसला सर करेंगे, तुम जाओगी या नहीं। फिलहाल तुम बस ये निकाह करो, अगर अपने घर वालों की जान की सलामती चाहती हो तो। थोड़ी ही देर के बाद मौलवी साहब कमरे में आए और निकाह पढ़वाने लगे। अगर यहाँ गनवा होती तो बहादुरी से मुकाबला करती, लेकिन यहाँ गनवा नहीं थी, यहाँ अबान थी जो अपने साय से भी डरती थी। निकाह हो चुका था और सब लोग जा चुके थे। अबान वहीं बैठकर रोने लगी। न जाने कितनी देर तक वो ऐसे ही रोती रही। फिर उसे महसूस हुआ कि जैसे उस कमरे में उसके अलावा भी कोई और है। नजर उठाकर सामने देखा तो सोफे पर टांग जमाए बैठा वो उसे रोते हुए देख रहा था। फिर उठकर आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। मेरी जान, तुम्हें अब सारी जिंदगी रोना ही है, लेकिन इस वक्त रोकर मेरी रात बर्बाद मत करो। शाहजहां ने उसे खींचकर अपने करीब किया। आपने कहा था निकाह के बाद मुझे छोड़ देंगे, अबान ने अपने और उसके बीच फासला कायम करते हुए कहा। जाने तू, आज तो हमारा निकाह हुआ है, अभी तो सारे तकाजे अदा होंगे, मैं कोई जबरदस्ती नहीं चाहता। ये कहते शाहजहां उठे, उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे में ले जाने लगा। प्लीज मुझे जाने दें, आपने जो कहा वो मैंने कर दिया, अब आप मजीद मुझसे क्या चाहते हैं? आपने यहाँ से जाने की शर्त निकाह रखी थी। उसे कमरे में लाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसे बेड पर ले आया। खुदा के लिए प्लीज, मैंने कहा मैं किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं चाहता। मुझे यकीन है कि तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर नहीं करोगी। प्लीज मुझे घर जाने दे, अबान ने रोते हुए कहा। जब शाहजहां का जोरदार हाथ उसके मुंह पर पड़ा, मैंने कहा मुंह बंद, अगर मुझे तुम्हारी आवाज आई तो जबान को गद्दी से खींच निकालूंगा। एक ही झटके में उसे खींचकर बेड के करीब किया और बेड पर गिरा दिया। उस पर झुकने लगा। मुझे जाने दो यहाँ से। मैं इससे पहले कि अबान अपनी बात मुकम्मल करती, शाहजहां ने उसे गर्दन से दबोच लिया। मुझे बात ना मानने वाली, बहस करने वाली औरतों से नफरत है। अगर अब मुझे तुम्हारी आवाज आई तो ये रात तुम्हारे लिए और भी मुश्किल बना दूंगा। शाहजहां ने हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी। तुम्हारी ये एक रात की अजियत मेरी 20 साल की अजियत के आगे कम है, बहुत कम। उसकी मासूमियत की धज्जियां उड़ाकर शाहजहां पुरसकून होकर सो गया और वो फर्श पर पड़ी रोती रही। आप समझने की कोशिश करें, मेरी बेटी कल से गायब है, वो घर नहीं आई, न जाने कहाँ चली गई, कॉलेज गई थी, भाग गई होगी किसी के साथ। ऐसे केसेस लेकर मत आया करो। थाने पुलिस ऑफिसर लाला से बात करते हुए भी एहसान कर रहा था। नहीं साहब जी, मेरी बेटी बहुत छोटी है, वो तो इन बातों को समझ भी नहीं सकती। हाँ, सब लोग आकर ऐसा ही कहते हैं। पता कराओ इसका कोई आशिक था, अगर नहीं भाग के गई तो किसी के साथ मुंह काला करके और तुम लोग हमारा दिमाग चाटने आ जाते हो। ऑफिसर बोला। साहब जी ऐसा मत कहें, मेरी बेटी बहुत छोटी है, मेहरबानी करके उसको ढूंढने में हमारी मदद करें, लाला ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं रिपोर्ट लिख देता हूँ। बताओ कब से गायब है तुम्हारी बेटी? ऑफिसर ने एहसान करते हुए पूछा। कल सुबह कॉलेज की थी, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। कल सुबह कॉलेज गई तो तुम यहाँ क्यों आ गए? अगले 24 घंटे से पहले नहीं होगी रिपोर्ट दर्ज। जाओ, 24 घंटे हो जाएं गायब हुए तब आना। ना साहब जी, मेरी बेटी ना जाने किस हाल में होगी, मेरी मदद करे, लाला मिन्नतें करते हुए बोला। मेरा दिमाग मत खराब करो, वकार, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ, ऑफिसर ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा और लाला के जाते ही किसी को फोन करने लगा। जी साहब जी, आपका काम हो गया, लाला की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, ऑफिसर ने फोन कान से लगाते हुए कहा। कोई फायदा नहीं हुआ, मैं इस प्लानिंग का असर अफसोस करते हुए बोला। कहाँ लाला से बदला लेना चाहते थे और कहाँ उस लड़की से निकाह पढ़ा लिया। हाँ यार, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। शाहजहां साहब ने ऐसा कैसे लाला की बेटी से शादी कर ली? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? सारी प्लानिंग का सत्यानाश हो गया। समझ में नहीं आ रहा आखिर शाहजहां साहब चाहते क्या हैं। बाबा, कुछ पता चला? बानो का लाला को घर के अंदर आते देर गनमा तोड़कर उनके करीब आई थी। नहीं, कुछ पता नहीं चला। पुलिस वाले भी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। वो कहते हैं जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते तब तक नहीं लिखेंगे। ये क्या बात हुई बाबा? 24 घंटे में बानो के साथ क्या जाने क्या क्या हो जाएगा। अल्लाह ने करे हमारी बानों के साथ कुछ बुरा हो, न जाने किस हाल में हो मेरी बच्ची। बाबा दोनों हाथ सर में पकड़कर चारपाई पर बैठ गए, जबकि गनवा भी अपने आंसू साफ करते उनके साथ बैठ गई। उसकी आंख खुली तो अपने आप को नरम गरम बिस्तर में पाया, जबकि अपने आप को किसी की कैद में महसूस करके वो किस्मत आई। उसने हिम्मत करके नजर उठाकर देखा तो शाहजहां ने उसे किसी तकिए की तरह अपनी बाहों में भींच रखा था। उसकी इज्जत को रोन कर शाहजहां ने उसे बेड से नीचे फेंक दिया था। तो अब वापस बेड पर कैसे आई? रात की बेबस याद आते ही एक बार फिर से रोने लगी और अपने आप को इस कैद से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जब बहुत कोशिश के बाद भी नाकाम रही तो अपनी कोशिश को तर्क करके बेआवाज आंसू बहाती रही। जब अचानक अपने बालों पर सख्त गिरफ्त महसूस हुई। बस इतनी सी थी तुम्हारी हिम्मत, ये थी तुम्हारी औकात। तुम चाहकर भी कभी अपने आप को मुझसे आजाद नहीं करवा पाओगी, इसलिए आज के बाद ये बेकार कोशिश मत करना और ये आंसू बहाना बंद करो। यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारे आंसू पर तरस खाए। शाहजहां ने अपनी गिरफ्त उसके बालों पर मजीद सख्त करते हुए कहा, छोड़ दे, मुझे घर जाने दे। आपका मकसद पूरा हो गया ना? आपको जो कुछ चाहिए था आपको मिल चुका है, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दे। अबान रोते हुए हिम्मत करके बोली, जबकि एक हाथ से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, अभी तो लाला को तड़पने देखना है।
भटकते दिखना है, भीख मांगते दिखना है। अभी कहाँ मेरा मकसद पूरा हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वॉर्डरोब में तुम्हारे कपड़े हैं, जो पसंद आए पहन लो, यहाँ से सब कुछ तुम्हारा ही है। यहाँ पर तुम्हारी जरूरत की हर चीज मौजूद है, लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, नाश्ता करेंगे। ये कहकर शाहजर उठकर जाने लगा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, जल्दी से नीचे आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है, अबान डर से सहम कर उठते हुए बोली। चट्टा। अबान फिर से बेड पर गिर गई। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है, उसके बालों को एक बार फिर से सख्ती से पकड़ते हुए कहा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, आई बात समझ में? शाहजर ने गुस्से से कहा। आई बात समझ में? जवाब न पाकर फिर से धारा। हाँ, अबान ने रोते हुए सर हिला। हाँ में हिलाया। गुड गर्ल। उसका गाल थपथपाकर वो कमरे से जाने लगा बाहर। अबान की रुकी हुई सांस बहाल हुई और उसने अबान के क्राउन से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने झट से आंखें खोली तो सामने शाहजर दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा था। काश तुम लाला की बेटी ना होती, काश। शाहजर के लहजे में कुछ ऐसा था जो अबान को शिद्दत से महसूस हुआ। अगर ऐसा होता तो ये सुबह बहुत हसीन होती। शाहजर इतना कहकर चला गया, जबकि अबान न जाने कितनी ही देर उसके लहजे की शिद्दत महसूस करती रही। रात चाहकर भी शाहजर इतना न गिर सका जितना वो गिरना चाहता था। वो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके करीब जाते ही उसे अपनी शिद्दतें लौटाने लगा, जो उसे खुद भी एहसास ना हुआ। रात को उसे अगर कुछ याद था तो बस इतना कि उसकी बाहों में उसकी प्रिंसेस है, उसकी शरई और कानूनी मलकियत, उसकी बीवी और उसकी मोहब्बत। और इस वक्त वो किसी और चीज़ को याद भी नहीं करना चाहता था। लेकिन जब इसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने एक झटके से खुद से दूर ज़मीन पर फेंका और खुद पर गुस्सा आने लगा। उसे खुद से दूर फेंक कर करवट बदल गया। न जाने कितनी देर कमरे में अबान की सिसकियां गूंजती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिसकियां तेज सांसों में बदल के ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस रुक रही हो। शाहजर खुद पर कंट्रोल किए लेटा रहा, मगर जब उसकी सांसों की आवाज तेज हुई तो शाहजर से मजीद बर्दाश्त न उठकर उसके करीब आया और उसे हिलाने लगा। लेकिन वो होश की दुनिया में ना थी। उसका पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। शाहजर ने उसकी नब्ज चेक की, जो बहुत धीमी चल रही थी। अबान उठो उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे बेहोश पड़ी थी। शाहजर ने परेशानी से उसके गाल थपथपाए। 2-3 बार ऐसा ही पुकारने पर जब वो ना बोली तो शाहजर उसे उठाकर बेड पर ले आया और उसके हाथ सहलाने लगा। अबान प्लीज आंखें खोलो। काफी देर ऐसे ही हाथ पैर सहलाता रहा, जब अबान ने जरा सी आंखें खोलकर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। यकीन करके क्या वो ठीक है? शाहजर ने पुरसुकून होकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। इसका नाम सुल्ताना है। ये हमेशा बीबी जी के आसपास रहेगी, उनका ख्याल रखेगी, उसके नौकर ने आकर बताया, जिससे उसने एक मुलाजमा का इंतजाम करने को कहा था, क्योंकि इससे पहले इस घर में कभी मुलाजमा नहीं आई थी। इस घर के सब काम मेल सर्वेंट करते थे। हाँ ठीक है, तुम जाओ, वो ऊपर है और उसे नीचे नाश्ते के लिए लेकर आओ। जी साहब जी। मुलाजमा हुक्म की तामील करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। रुको, कमरे के अंदर मत जाना, मेरी बीवी के अलावा कोई भी मेरे बेडरूम में नहीं जा सकता था। शाहजर ने वॉर्न करने वाले अंदाज में कहा। जी ठीक है जनाब जी। हमसा के फोन आने पर उसने कॉल उठाई। शाहजर, तेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। ड्रीम प्रोजेक्ट हमें मिल गया। लोगों को सबसे ज्यादा तेरी प्रेजेंटेशन पसंद है। लोगों को यहाँ के किसी मसले से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस औरत के एक्सीडेंट वाले मामले को अखबार वालों का ने काफी बढ़ा चढ़ा कर बताया है। खैर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है। हमसा कहते कहते रुका। वो क्या? शाहजर ने पूछा। यही कि मेरी भाभी तेरे लिए बहुत लकी साबित हुई है। उसकी तेरी जिंदगी में आते ही तुझे तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मिल गया। हमजा जानता था कि शाहजर इन बातों पर यकीन नहीं करता। अब तो जल्दी से उससे शादी कर ले ताकि तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगे। हमजा की बात पर शाहजर मुस्कुराया, लेकिन फिर भी उसे बता न सका कि अबान लाला की बेटी है। फोन बंद करने के बाद भी यही सोचने लगा कि अब वो आगे लाला को तकलीफ पहुंचाने के लिए क्या करेगा, क्योंकि अबान को तकलीफ पहुंचाकर वो खुद भी 1000 मौत मरा था। लाला, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं तुमसे इंतकाम ले रहा हूँ या अपने आप से? तुम हर बार मेरे लिए तकलीफ का सबब बनते हो। काश अबान तुम्हारी बेटी ना होती। सर, लाला की बेटी का क्या करना है? असफर ने आकर पूछा। अपना जुमला दुरुस्त करो असफर। लाला की बेटी नहीं, शाहजर शाह की बीवी है वो। शाहजर इतने जोर से धाड़ा कि असफर बौखला कर रह गया। सॉरी सर, आई एम सॉरी। उसकी आंखों की सुर्खी देखकर माफी मांगने में ही बेहतरी जानी। सर आपके हाथ को क्या? उसके हाथ में पट्टी देखकर असफर पूछे बगैर ना रह सका। अपने काम से मतलब रखो असफर, शाहजर ने गुस्से से कहा तो वो सॉरी कहते हुए वहां से निकल गया। अब उसे क्या बताता कि वो अपनी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की सजा खुद को दे चुका है। अब तो हो गए ना आपके 24 घंटे। अब भी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? आप जैसी पुलिस सर्विस की वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं करा। अगर इस रात में मेरी बहन के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? गनवा गुस्से से तन करती आई और आता ही इंस्पेक्टर को अच्छी खासी सुना डाली। ओ बीबी, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ। किसी स्कूल में तकरीर नहीं कह रही तुम, जिस पर सब तालियां बजाएंगे। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, इसलिए जरा आवाज कम रखो तो बेहतर होगा, वरना। इंस्पेक्टर उसी के अंदाज में बोला। वरना क्या?
रेस गन्वा के पीछे खड़ा था। उसे देखकर गन्वा चौंक गई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बताएं वरना क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं आप? और ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का? कानून के मुहाफिज होकर आपको कानून का तो पता नहीं, लेकिन लगता है आपको औरतों से बात करने का सलीका भी आम लोगों को सिखाना पड़ेगा। रेस ने एक एक लफ्ज छुपा छुपा कर कहा। रेस अगर पुलिस स्टेशन आता था, यहाँ के सभी इंस्पेक्टर उसे अच्छे से जानते थे। नहीं सर, ये लड़की कब से तंग की जा रही है, इसकी बहन कहीं भाग गई है, कल इसका बाप बार बार आ रहा था और आज ही सुबह से चक्कर काट रही है। ये मेरी बहन भागी नहीं है, समझे तुम? गन्वा ने चिल्लाते हुए कहा। रेस मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो बहुत मासूम है, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ होगा और ये लोग रिपोर्ट तक नहीं लिख रहे। और अब रोते हुए रेस को बताने लगी, तुम फिक्र मत करो गन्वा, रिपोर्ट लिखी जाएगी और अभी लिखी जाएगी। उसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए गन्वा को दिलासा दिया और रिपोर्ट लिखवाने लगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस केस पर जल्दी एक्शन लेंगे, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा और अगर मैंने एक्शन लिया तो शायद आपको ये वर्दी पहनने की जहमत ना करनी पड़े। रिपोर्ट लिखवाकर उसे बाहर ले आया। उसने वार्डरोब खोला। अलमारी की जगह यहाँ एक कमरा था जिसमें एक से एक बढ़कर एक जूते और कपड़े मौजूद थे। ये किसी का कमरा नहीं बल्कि कोई दुकान लग रही थी। अबान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से कपड़े पहने। एक से बढ़कर एक फैंसी और स्टाइलिश ड्रेस जिसमें हर एक के साथ एक मेल 3 पीस सूट था और जिस रंग की फीमेल ड्रेस थी उसी के साथ मैचिंग शर्ट मेल सूट के अंदर थी। सिर्फ एक एक कलर का ड्रेस था जिसके साथ कोई मेल ड्रेस नहीं था। सिर्फ एक ही ऐसा कलर था जिसके साथ कोई मेल ड्रेस नहीं था। अबान ने वही ड्रेस निकाल कर पहना, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसी का ड्रेस हो, बिल्कुल उसके माप का। इनमें से किसी भी ड्रेस में कोई बेहयाई और बेहूदगी ना थी। मुकम्मल आस्तीन के साथ लॉन्ग दुपट्टा जो बिलाशुबा शानदार लिबास था। अबान ने शीशे के सामने खड़े होकर मुकम्मल अपना जायजा लिया। शीशे में देखते हुए एक बार फिर से उसे रात का मंजर याद आने लगा। उसे अपने आप से घिन महसूस हो रही थी। क्या कोई बदले के लिए इतना गिर सकते हैं? उसके चेहरे पर शाजर के उंगलियों के निशान अब भी मौजूद थे, जिसकी तकलीफ वो अब भी महसूस कर रही थी। आई हेट यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो कितनी देर से नोट कर रही थी जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा हो, लेकिन कौन? अगर शाजर होता तो उससे कमरे में आ चुका होता, फिर कौन हो सकता है? यही सोचकर उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने एक औरत खड़ी थी जो दरवाजा खुलते ही अलर्ट हो गई। अरे बीबी जी, शाह साहब कह रहे हैं कि नीचे आकर नाश्ता कर लीजिए। मैं कब से आपका दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। शाह साहब ने मना किया था कि दरवाजा खटखटा कर आपको तंग ना करे। उसकी बात सुनकर उसको मुकम्मल इग्नोर करके वो कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उफ, कितनी खूबसूरत बीबी है और इतनी ही मगरूर। खैर, इसका गरूर करना बनता भी है, इतने बड़े आदमी की बीवी है। मुलाजमा बराबर आते हुए उसके पीछे आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को हमारे घर में लेकर आने की? दिलावर शाह गुस्से से बोले। बाबा, ये मेरी बीवी है, मेरे साथ रहेगी, अगर यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? शाह मेरी हिम्मत करके बोला। नहीं मानते हम इसे तुम्हारी बीवी, अभी के अभी निकालो इसे यहाँ से। हमारे घर की बहू सिर्फ हमारी खानदानी लड़की होगी, किसी भी राह चलती लड़की को हम अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करेंगे। दिलावर शाह गुस्से से बोले। बाबा, ये मेरी बीवी है और मेरे साथ ही रहेगी, अगर आपने इसे यहाँ से निकाला तो मुझे भी यहाँ से मजबूरन जाना होगा। शाह मेरी बिना खौफ बोले। वाह शामिर शाह, इस लड़की की मोहब्बत के लिए तुम अपने बाप से बगावत कर रहे हो। 4 दिन की है ये मोहब्बत और इस लड़की के होते हुए हम तुम्हें अपनी जायदाद से एक फूटी कोड़ी नहीं देंगे। भूख से तड़प तड़प कर मरोगे तो फिर नहीं याद आएगी तुम्हें ये तुम्हारी 2 टके की मोहब्बत। जब भूख दरवाजे के रास्ते से अंदर आएगी तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से बाहर भाग जाएगी। इसलिए जज्बात में बहकर कोई फैसला करने से बेहतर है अभी तलाक दो इसे और निकालो इसे यहाँ से बाहर। दिलावर शाह गुस्से में अपने आपे से बाहर हो रहे थे। नहीं बाबा, अगर आमना यहाँ से जाएगी तो मैं इसके साथ जाऊंगा। मैंने जिंदगी भर इसका साथ निभाने का वादा किया है। निकाह करके मैं इसे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। ठीक है तो फिर दफा हो जाओ हमारी नजरों से। आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम यही समझेंगे कि हमारा बेटा मर गया। शाह साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मा भी तड़प कर आगे बढ़ी। और अगर हवेली से किसी ने भी इससे कोई ताल्लुक रखा तो इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। दिलावर शाह अपनी बीवी को सुनाते हुए कहा और अंदर चले गए, जबकि शामिर ने अम्ना का हाथ थामा और वापस जाने लगे। और अम्मा भी खाली खाली नजरों से कभी अपने बेटे को तो कभी अपने शोहर को देखती रही। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बोलो इंस्पेक्टर, क्या खबर है? शाहजर सीढ़ियों से उतरती अवान को देख चुका था, इसलिए जल्दी जल्दी बोला। सर वो रिपोर्ट दर्ज हो गई है, यही बताने के लिए फोन किया था। सर वो लड़की गन्वा मीडिया के लिए काम करती है, अगर हम उसकी रिपोर्ट दर्ज ना करते तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। इतना ही कहना है या कुछ और भी? शाहजर ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। नहीं सर, बस यही बताने के लिए फोन किया था, इंस्पेक्टर हैरान होकर कहा, जबकि दूसरी तरफ शाहजर फोन बंद कर चुका था। शाहजर के कपड़ों को देखकर उसे पता चला कि वहां पर उसके ड्रेस का मैचिंग सूट कहाँ गया, मगर इस बात से अबान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहती थी। तुम्हें 10 मिनट कहे थे ना मैंने, पूरे 45 मिनट बाद आई हो। खैर छोड़ो इन सब बातों को, चलो नाश्ता करते हैं। उसका हाथ पकड़कर टेबल के करीब ले आया और अपने साथ वाली चेयर पर बिठाया। क्या खाना पसंद करोगी तुम? वैसे तो मैं ज्यादातर नाश्ता नहीं करता, लेकिन तुम्हें नाश्ते की जरूरत है। सुनो तुम सुल्ताना, आज से मेरी अबान की पसंद का नाश्ता बनाना। इसने मेरी पर जोर देते हुए कहा। बताओ आज क्या खाओगी तुम? उसने फिर से अबान से पूछा।
मुझे कुछ नहीं करना, अपने घर जाना है, अबान इतने धीरे से कहा कि शाहजर बामुश्किल सुन पाया। जान, हम कोई होटल में नहीं है, घर पर ही हैं। शाहजर ने नागवारी छुपाते हुए कहा, मुझे मेरे घर जाना है, अपने घर। अबान ने फिर कहा, ये तुम्हारा ही घर है अबान, और अब से तुम यहीं रहोगी, सो आदर टाल लो। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, अपने बाबा के पास। अबान चिल्लाते हुए बोली, चट्टा। शाहजर का थप्पड़ उसका मुंह बंद कर गया। बार बार अपने आप को उसकी बेटी मत कहो। शाहजर गुस्से से दौड़ा, मेरे ना कहने से क्या वो मेरे बाबा नहीं रहेंगे? अबान ने रोते हुए कहा, मेरे बाबा को जब पता चलेगा कि आपने मुझे मारा है तो मेरे बाबा आपको नहीं छोड़ेंगे। रोते हुए सुर्ख आंखों से उसने मासूम सी धमकी दी, जिस पर शाहजर अपना गुस्सा भूले उसे देखने लगा, जो अपनी आंखों से उसे कत्ल करने का इरादा रखती थी। उफ, कितनी अदाएं हैं इस छोटी सी पटाखा की। शाहजर बेख्तियार उसके करीब आया। प्रिंसेस, रोना बंद करो प्लीज, उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला। तुम्हें तुम्हारे घर जाना है ना, मैं लेकर चलूंगा तुम्हें। अबान ने नजरें उठाकर उसके चेहरे पर बेयकीनी से देखा। आप सच कह रहे हैं, अब मुझे लेकर जाएंगे मेरे घर? अबान ने पूछा। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, आखिर सुसर साहब और साली साहिबा को हमारी शादी का बताना भी तो है। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। मुझे मंजूर है, आप जो कहोगे मैं करूंगी। अबान ने उसकी शर्त सुनना जरूरी न समझा। वो तो बस अपने घर, अपने बाप और बहन के पास जाना चाहती थी। मेरी शर्त तो सुन लो मिसेस शाहजर शाह, शर्त यह है कि जिस तरह से तुम मेरे साथ यहाँ से जाओगी उसी तरह वापस भी आओगी। मैं वहां पर कोई तमाशा नहीं चाहता। शाहजर ने बौन करते हुए कहा, नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी, मुझे नहीं आना आपके साथ, मुझे वहीं रहना है, अपने बाबा के पास। अब अबान झट अपना आप छुड़ाकर उससे 2 कदम के फासले पर हुई। बाकी सब ठीक है प्रिंसेस, लेकिन आज के बाद इस तरह मुझसे दूर जाने की गलती मत करना। शाहजर ने लम्हे की देर किए बगैर उसे खींचकर एक बार फिर से अपने करीब किया। अगर तुम अपने बाप और बहन से मिलना नहीं चाहती तो तुम्हारी मर्जी। ये कहकर शाहजर बाइक की तरफ जाने लगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, अबान ने उसे जाते देखकर जल्दी से कहा। जो हुक्म मेरी जान, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वहां जाकर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो सख्त से सख्त सजा मिलेगी। शाहजर कहकर बाहर निकल गए, जबकि अबान बस एक बार अपने बाबा के पास जाना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसके बाबा उसे बचा लेंगे, जबकि शाहजर लाला की बर्बादी देखने के लिए तैयार था। अपने वादे के मुताबिक शाहजर उसे लाला के घर पर ले आया था। सारे रास्ते में वो एक लफ्ज भी नहीं बोली। अपने घर पहुंचते वो गाड़ी से तेजी से बाहर निकली, अपने घर की तरफ भाग गई। शाहजर उसकी जल्दबाजी देखकर बेसाख्ता मुस्कुराया और उसके पीछे आने लगा। घर के अंदर कदम रखते ही इसलिए उसने गनवा को पुकारा, जबकि गनवा उसकी आवाज सुनते ही दौड़कर कमरे से बाहर है। उसके करीब आकर उसे अपने गले से लगा लिया। बहन का सहारा मिलते ही अबान फूट फूट कर रोने लगी। अबान, कहाँ थी तू? हमने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। बाबा का बीपी बहुत आई है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी गनवा लाला के बारे में बता ही रही थी जब वो कमरे से बाहर निकले। अबान दौड़कर उनके सीने से लगी। बाबा, वो बहुत गंदा है, इसलिए मुझे बहुत मारा उसने, यहाँ पर मारा, ये देखें। अबान अपना गाल दिखाते हुए बोली। जब लाला की नजर जब सामने खड़े दरवाजे पर शाहजर पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। शाहजर पुरसुकून अंदाज में दरवाजे से टेक लगाए उनका इमोशनल सीन देखकर मुस्कुरा रहा था। गनवा उसके बाद सुनकर दरवाजे पर खड़े शाहजर की तरफ बढ़ी और उसके गिरेबान से पकड़ना चाहा, जब शाहजर ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। नहीं गनवा हयात खान, नहीं, एक बार हाथ उठाने का अंजाम देख चुकी हो, मेरे गिरेबान तक पहुंचने का अंजाम इससे भी बुरा होगा। शाहजर उसके हाथ पकड़कर उसे खुद से परे करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बाबा, पुलिस को फोन करें, हम इसे अभी पुलिस के हवाले करेंगे। हाँ, शौक से करो पुलिस को फोन, क्योंकि इसके अलावा और कर भी कुछ नहीं सकते। लेकिन इसके बाद क्या होगा? मैं अपनी जेब से कागज निकालूंगा, पुलिस वालों को दिखाऊंगा और वो तुम्हारी बेटी को मेरे हवाले करके वापस चले जाएंगे। हाँ लाला, ऐसा ही होगा। शाहजर अपनी जेब से कागज निकालकर लाला के सामने लहराते हुए कहा, नहीं शाह, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मासूम है, तुम मेरे गुनाहों की सजा उसे नहीं दे सकते। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे सजा दो, तुम जो कहोगे वो करूंगा, मेरी बेटी को आजाद कर दो। लाला रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ने लगा। बाबा, आप इसके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या है इस पेपर में? गनवा ने शाहजर के हाथ से पेपर खींचा। निकाहनामा? गनवा बेयकीनी से निकाहनामा देखने लगी। हाँ साली साहिबा, निकाहनामा मेरा और आपकी बहन का। आपकी बहन ने अपनी मर्जी से मुझे अपना शरीक हयात कबूल किया, वरना मैंने तो इसे ऑफर की थी कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लो फिर चली जाए, या फिर मुझसे निकाह करके सारी जिंदगी मेरे साथ रहे। काफी समझदार है ये छोटी सी पटाखा, निकाह की अहमियत का मतलब समझती है। शाहजर ने एक एक लफ्ज छुपा छुपा कर कहा, तुमने मुझसे ये सब कुछ उस दिन का बदला लेने के लिए किया है ना? गनवा फौरन ही बात की तह तक पहुंची। तुम बहुत समझदार हो साली साहिबा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जो कुछ हुआ वो मैंने किया, मेरी बहन की कोई गलती नहीं, उसे आजाद कर दो। हा हा हा। इसकी बात सुनकर शाहजर कहकर लगाकर हंसा। अभी 2 मिनट पहले जो लड़की उसका गिरबान पकड़ रही थी अब उन्हें हाथों को जोड़कर माफी मांग रही थी। जानती हो साली साहिबा, तुम्हारी गलती काबिल माफी है, लेकिन 20 साल पुराना गुनाह काबिल माफी है और ना ही इसकी कभी ना काबिल माफी है और ना ही कभी इसकी माफी मिलेगी, शाहजर ने लाला को देखते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर लाला की निगाह जमीन से न उठी।
आज उसका 20 साल पुराना गुनाह सीना ताने उसकी बेटियों के सामने खड़ा था। बताओ लाला, क्या तुम्हारा गुनाह इस काबिल है कि उसे माफ किया जाए? शाहजद, मेरी बेटी को माफ कर दो, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, तुम जो सजा दोगे मुझे कबूल है, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो तुम्हारी बेटी को? तुम्हारे गुनाहों का हिसाब चुकाएगी लाला। जो गुनाह तुमने की है उसका अजाला करेगी। जो तकलीफ मैं 20 साल से सह रहा हूँ वो तुम्हारी बेटी से है कि तुम अपनी बेटी के लिए तड़पोगे, तुम अपनी बेटी को देख तक नहीं पाओगे। लेकिन फिक्र मत करो, बहुत बेरहम नहीं हूं मैं, जब मर जाएगी मैं इसकी लाश तुम्हें दे दूंगा। लाला ने तड़प कर अबान को अपने सीने से लगाया। माफ कर दो शाहजद, मेरी बेटी मासूम है। लाला हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। चलो अबान, घर चलो, शाहजद ने अबान को मुखातिब करते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर अबान लाला के पीछे छुपने लगी। अबान, मैंने कहा घर चलो। इस बार शाहजद इतने जोर से दौड़ा कि अबान काम कर रह गई। बाबा मुझे नहीं जाना इसके साथ, ये बहुत बुरा है, इसने मुझे बहुत मारा। बाबा मुझे बचा ले, ये मुझे मार डालेगा, बहुत बुरा है। अबान रोते हुए लाला के सीने में चुपने लगी, जबकि शाहजद गुस्से से घूर रहा था। अबान, मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ धोखा मत करना, मैंने कहा था ना मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे साथ वापस आना है, मैंने कहा था ना वादा खिलाफी की तो सख्त सजा मिलेगी। एक लम्हे में उसका बाजू पकड़ के उसे लाला से अलग करके पूछने लगा, धोखा तो तुम्हारी फितरत में, आखिर बेटी किसकी हो? बाबा मुझे नहीं जाना, मुझे बचा ले। शाहजद को इग्नोर करके वो फिर से लाला को मदद के लिए पुकारने लगी, जब अचानक शाहजद ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और लाला के सर पर रख दिया। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बाप तुम्हारी आंखों के सामने मेरे हाथ से मर जाए तो चलो मेरे साथ, शाहजद गुस्से से धारते हुए बोला। उसके हाथ में रिवॉल्वर देकर गनवा की चीख निकली, नहीं नहीं प्लीज मेरे बाबा को कुछ मत करना, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज मेरे बाबा को मत मारना। अबान रोते हुए शाहजद का हाथ पीछे करने की कोशिश करने लगी, जबकि शाहजद ने एक लम्हे की देर के बगैर अबान का हाथ पकड़ा, उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। तुम मेरे ऑफिस में इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। हमजा का एक पुराना दोस्त उसके ऑफिस था। हमजा उसका इंतजार करने के लिए कहकर खुद मीटिंग में चला गया। कुछ देर में वापस आया तो उसके दोस्त के हाथ फोटो थी, जबकि हमजा, अरादे और मिशी की थी, वो तस्वीर हमजा अपने ऑफिस की टेबल पर फ्रेम करवा कर रखी थी। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी फैमिली। हमजा ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा उसे देखकर उसका दोस्त बोला, फैमिली तो सबकी खूबसूरत होती है। हमजा ये कहकर अपनी चेयर पर बैठ गया, जबकि उसका दोस्त तस्वीर रख कर उसके सामने वाली सीट पर आ बैठा। हाँ ठीक कहा तुमने, फैमिली सबकी खूबसूरत होती है, लेकिन औलाद की नेमत एक अधूरी तस्वीर में रंग भर देती है। शायद दोस्त ने अपनी महरूमी महसूस करते हुए कहा। लव मैरिज, दोस्त ने अपना अफसोस एक तरफ करते हुए कहा। लव भी कह सकते हो, अरेंज भी। मेरा मतलब है मेरी तरफ से तो लव मैरी थी, लेकिन उसकी तरफ से अरेंज। यहाँ जॉब मांगने आई थी और मैंने अपना दिल दे दिया। देखा कितना दरिया दिल हूँ मैं, हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो भी मुस्कुरा दिया। क्या करती हैं भाभी? हाउस जॉब। मेरा और मिशी का ख्याल रखती है, हमजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर वो भी मुस्कुराया। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं फिर आऊंगा तो इससे मिलने के लिए, दोस्त ने उठते हुए कहा। अरे रुक जा यार, अभी आए हो, तुझे टाइम कितना हुआ है? मैं भी किसी दिन चक्कर लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे कहीं जाना है। बहुत जल्द मुलाकात होकर तुझसे ये कहकर वो चला गया, जबकि हमजा ने टेबल से तस्वीर उठाई, इसे देखने लगा। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया राधिया, थैंक यू सो मच। तस्वीर को चूमकर उसने वापस रख दिया और उठकर घर जाने लगा, क्योंकि अब से तस्वीर देखकर गुजारा करना नामुमकिन था। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। अबान डर के मारे कांप रही थी। अब शाहजद क्या करेगा उसके साथ? उसका बाप उसे बचा नहीं पाया। उसके बाप ने तो उसके सामने मिन्नतें भी की, अपने हाथ भी जोड़े, लेकिन शाहजद को उस पर रहम नहीं आया। न जाने वो कौन सा राज था जो 20 सालों से दफन था। उस राज की वजह से शाहजद ने अबान को इंतकाम का निशाना बनाया था। अब तो यकीनन बहुत जान से मार डालेगा, क्योंकि शाहजद ने उसे कहा था कि उसकी छोटी से छोटी गलती पर बहुत सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्या सजा देगा शाहजद उसे? ये सोचकर उसके हाथ पैर कांप रहे थे कि अचानक शाहजद ने बीच जंगल में गाड़ी रोक दी। 8 बज रहे थे, लेकिन घने जंगल के अंधेरे से ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। उसी सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं आ रही थी और ना ही कोई इंसान, बस जंगली जानवरों की अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। उतरो नीचे, शाहजद भारी आवाज में बोला। जी, खौफ के मारे अब कुछ बोल भी नहीं पाई। मैंने कहा उतरो नीचे, शाहजद गुस्से से धाड़ा। क्यों? मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है, और यहाँ पर तो अंधेरा भी है। अब उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो, शाहजद फिर से धाड़ा। देखिए आई एम सॉरी, मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। इससे पहले अबान कुछ और कहती, शाहजद फिर से धाड़ा। खौफ के मारे अबान ने फौरन दरवाजा खोला और गाड़ी से नीचे उतर गई। वो समझ नहीं पा रही थी ये जंगली रास्ता ज्यादा खतरनाक है या शाहजद का गुस्सा। यहाँ से हमारी हवेली 10 मिनट के फासले पर है, अगर पैदल जाओ तो आधे घंटे का फासला है, लेकिन अगर दौड़ के जाओ तो 20 मिनट के फासले पर। लेकिन अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने टाइम में घर पहुंचोगी। तुम्हारे पास से सिर्फ आधा घंटा है। अगर तुम आधे घंटे में हवेली नहीं पहुंची तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे बाप के सीने में उतार दूंगा।
उसने अपना हाथ में रिवॉल्वर पकड़ कर कहा, लेकिन मुझे हवेली का रास्ता नहीं आता, मैं कैसे पहुंचूंगी? एक तो जंगल जहां शादर उसे अकेला ही छोड़कर जा रहा था, ऊपर से उसका कहना था कि आधे घंटे के अंदर हवेली पहुंचो, और अबान को हवेली का रास्ता तक मालूम नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए रोते हुए अपना मसला शादर को बताने लगी। ये मेरा मसला नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था मुझे धोखा मत देना, मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश मत करना, लेकिन नहीं, बहुत यकीन था तुम्हें तुम्हारे बाप पर कि वो तुम्हें बचा लेगा। तो सुन लो मिसेस शाजर शाह, अब से इस दुनिया में तुम्हारी दुनिया शाजर से शुरू होकर शाजर पर खत्म होगी। आज के बाद तुम मुझे धोखा देने के बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। ये कहकर शाजर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि अबान बिना कुछ सोचे समझे उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगी। देखिए प्लीज रुक जाए, मैं कैसे आऊंगी यहाँ से, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाएं। अबान मुसलसल उसकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। गाड़ी के पीछे भागते भागते गाड़ी की स्पीड इतनी तेज हो गई कि शादर उसकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन फिर भी अबान ने भागना न छोड़ा और इसी रास्ते पर भागती रही जिस रास्ते से वो गाड़ी निकली थी। एक तो जंगल का खौफ, ऊपर से न जाने शादर उसके बाप के साथ क्या कर दिया। अबान की सांसें पूरी तरह से फूल चुकी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे अगर किसी की परवाह थी तो सिर्फ अपने बाप की, जिसके साथ शादर कहीं भी कुछ भी कर सकता था। भागते भागते एक मोड़ पर उसे शादर की गाड़ी रुकी हुई नजर आई। अबान भागकर उस गाड़ी के पास पहुंची, लेकिन जब वो गाड़ी के पास पहुंची तो शादर ने गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते गाड़ी एक बार फिर से उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। अबान के पैर बुरी तरह से दर्द करने लगे, यहाँ तक कि उसकी चप्पल भी फट गई। चप्पल वहीं उतार कर वो फिर से भागने लगी। कुछ फासले पर उसने एक बार फिर से शादर की गाड़ी खड़ी देखी। या तो वो उसे की बेबसी का मजाक बना रहा था या उसे रास्ता बता रहा था। जो भी था, अबान को सहारा हो चुका था कि शादर उसके आसपास ही है। भागते भागते आखिरकार वो पहुंच आई। शादर गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा था, यकीनन वो इसका इंतजार कर रहा था। पसीने से अब उसके सारे कपड़े भीग चुके थे, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, उसकी सांसें बुरी तरह उथल पुथल रही थी। शादर दोनों हाथ अपनी जेब में डाले आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसके करीब आ रुका। थक गई मेरी जान, मुझे यकीन है कि आज के बाद तुम मेरे साथ धोखा करने की गलती कभी नहीं करोगी। उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा और अंदर ले जाने लगा। जब अबान की चीख निकल गई, शादर ने बेख्तियार उसके पैर की तरफ देखा जहां से खून बह रहा था। मेरी बेबी को चोट लग गई, गिर गया मेरा बच्चा, बहुत दर्द हो रहा है। उसके पैर के करीब जमीन पर बैठे उसके पैर को देखने लगा जहां से खून बह रहा था। उसके इस तरह पूछने पर अबान बुरी तरह से रोने लगी। रोना बंद, बिल्कुल भी नहीं। उसे चुप कराते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाने लगा। हमजा आज इतनी जल्दी आ गए, राधिया खुश होकर बोली, जिस पर हमजा मुस्कुरा दिया। हाँ मेरी जान, मिशी कहाँ है? हमजा ने पूछा। मिशी सो रही है, और खबरदार जो आपने उसे जगा कर तंग किया, राधिया ने बताने के साथ वार्न किया। ओके जानू, आज हम मिशी को जगा कर तंग नहीं करेंगे, आज हम उसकी मामा को तंग करेंगे। हमजा अपना कोट उतारते हुए राधिया के करीब आया। नहीं, आप मिशी को जगा लीजिए, राधिया की मामा को बहुत काम है। उसका इरादा जानकर राधिया फौरन भागने की कोशिश की। बेहतर होगा कि मिशी की मामा अपना सारा काम कल पर उधार रखते हैं, क्योंकि आज तो मिशी की मामा को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये कहते हमजा ने राधिया का हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा और बाल शामिर और आमना ने अपनी मोहब्बत का आशियाना बना लिया था। उनकी शादी को 1 साल होने वाला था, लेकिन आमना ने शामिर की मोहब्बत में कोई खोट न देखी। शामिर आमना का हर वक्त ही ख्याल रखता था। शादी के 1 साल में शामिर सिर्फ अपनी माँ को याद करता, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। वो जानता था कि उसकी माँ उससे बहुत याद करती है, लेकिन उसकी माँ भी बहुत मजबूर थी। वो शोहर या बेटे में से किसी एक को नहीं चुन सकती थी, इसलिए शामिर भी वापस अपनी माँ से मिलने ना किया। आमना अपने आप में गिल्ट महसूस करती थी कि उसकी वजह से शामिर अपनों से बिछड़ गया, लेकिन शामिर उसे उदास होने से मना करता था। शामिर को अच्छी जॉब मिल गई थी, पहले की तरह शान और शौकत से तो नहीं, हाँ, लेकिन अब शामिर अपना गुजारा कम पैसों में भी करने लगा था। एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए महीने के आखिर में अक्सर उनके पैसे कम पड़ जाते थे, लेकिन शामिर ने कभी आमना से इस बारे में बात ना की। एक दिन आमना ने कहा, शामिर मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्यों आमना, तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी नौकरी करने की? मैं हूं ना। शामिर ने उसे मना करना चाहा। नहीं शामिर, मुझे लगता है कि मुझे भी नौकरी करनी चाहिए, आपका हाथ भी बटा लूंगी और घर में ज्यादा पैसे भी आएंगे, जिससे हमारा गुजर बसर और अच्छे तरीके से होगा। देखो आमना, मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये नौकरी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। तुम वो करो जो औरतें करती हैं, घर पर रहती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, शौहर का इंतजार करती हैं। बाहर जाकर काम करना मर्दों का काम है। यकीन करो आमना, मैं ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, तुम ये नौकरी कर सकती हो। नहीं शामिर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इसलिए कह रही थी कि आपका हाथ बटा सकूं। जरूरत नहीं है आमना, मैं सब संभाल लूंगा। उसे अपने सीने से लगाया आराम से बोला। उसके बाद आमना ने भी मजीद बहस नहीं की।
तुम यकीन से कैसे कह सकते हो ये वही लड़की थी? नहीं सर, यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शक है कि वही लड़की है। ठीक है, लेकिन अगर वो ये लड़की ना हुई तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। सुफियान मलिक गुस्से से दौड़ा। लेकिन सर, अगर ये वही लड़की हुई तो आप वादा करें आप मुझे मालो माल कर देंगे। ठीक कहा तुमने, अगर ये वही लड़की हुई तो मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें। सुफियान मलिक बोला, ठीक है सर, मैं बहुत जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूंगा। आप निगाह बेगम तक खबर पहुंचा दें। नहीं, निगाह बेगम तक खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे उस लड़की की पूरी कीमत अदा कर चुका हूँ। अब उस लड़की पर सिर्फ मेरा हक है। उसे उठाकर सीधा बेडरूम में लेकर आया। मेरी जान को इतनी ज्यादा चोट लगी, अभी मैं यहाँ मरहम लगाऊंगा, फिर दर्द कम हो जाएगा तुम्हारा। उसे बेड पर रखते हुए आराम से बोला, और साथ में वो साइड ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स में भी निकाल रहा था। उसमें से दवाई निकाली और उसका जख्म साफ करके उसके जख्म पर मरहम लगाने लगा। अबान ने डर से अपना पैर पीछे खींचने की कोशिश की। बहुत दर्द हो रहा है। उसके पैर पर आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारते हुए दवाई लगाते हुए बोला, लेकिन दवाई लगने की जलन की वजह से अबान को और तकलीफ हो रही थी। मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमने भी ठीक तो नहीं किया मेरे साथ वहां जाकर। लोगों के मिलते हैं तुम मुझे भूल गई। हाँ, तुम मत किया करो ना ऐसी हरकतें। क्यों किया तुमने ऐसा, जबकि घर से समझा कर ले गया था ना मैं तुम्हें वहां, लेकिन नहीं, सीधे तरीके से सुनती नहीं हो मेरी बात। जो भी हुआ अच्छा नहीं था, और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करना चाहता, और मुझे यकीन है कि तुम भी मेरी सारी बातें मानोगी ना? बात करते हुए उसने अबान के चेहरे की तरफ देखा। मानोगी ना? फिर से नरमी से पूछा। गाड़ी वाला गुस्सा इस वक्त उसके चेहरे पर कहीं नहीं था, और अबान चाहती भी नहीं थी कि वो गुस्सा वापस आए। हाँ, बड़ी मुश्किल से एक लफ्ज जबान से अदा हुआ था, गुड गर्ल। उसका गाल थपथपाकर वो कमरे से बाहर चला गया था। अबान का रुका हुआ सांस बहाल हुआ और बेड पर लेट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाप का कौन सा राज छुपा हुआ है। आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से शाहजर उसे यहाँ उठा लाया। अभी भी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब शाहजर हाथ में खाने का ट्रे लेकर कमरे में वापस आया। ओ नो जान, इतनी जल्दी नहीं सो सकती तुम। अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया, और घर से जाते हुए भी ठीक से नहीं खाया था। चलो तो शाबाश, कुछ खा लो। उसे बिठाकर खाना उसके सामने रखा। चलो खाओ, ये देखने के लिए नहीं रखा मैंने। कुछ देर अबान ऐसे ही खाने को देखती रही जब शाहजर ने उसे टोका। मुझे भूख नहीं है। इस वक्त अबान को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो उसे बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मुंह फेर कर बोली, सुबह नाश्ते के वक्त भी तुम्हें भूख नहीं थी, अभी भी भूख नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगले 100 साल तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी। लेकिन सॉरी जान, मुझे बहुत भूख लगी, और मेरे साथ निभाने के लिए तो तुम्हें खाना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। शाहजर का नरम लहजा देखकर अबान को कुछ हौसला हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था कि तुम सारी बातें मानोगी मेरी। कहा था ना। देखो अबान, मुझे हर बात पर जबरदस्ती करना हरगिज़ पसंद नहीं है। अबान ने नोट किया शाहजर के चेहरे की नरमी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही थी। जब शाहजर निवाला बनाकर उसकी तरफ ले आया, मैं खुद खा सकती हूँ। उसने शाहजर का हाथ अपने चेहरे से पीछे किया। सुबह समझाया था ना तुम्हें कि खुद से दूर करने की कोशिश मत करना। मुझे समझ नहीं आया था। उस वक्त शाहजर के चेहरे पर सख्ती आ गई थी, जिस पर अबान को एक बार फिर डर लगने लगा था। नहीं, मेरा मतलब मैं खुद खा लूंगी। अब तो तुम्हें मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा। ये कहते शाहजर ने निवाला बनाया और एक बार फिर से उसके मुंह के करीब ले आया। मुंह खोलो, सख्ती से ऑर्डर किया, जिस पर फौरन ही अबान ने मुंह खोल दिया। उसके बाद उसे खाना खिलाता गया। दोबारा उसने बस कहने की कोशिश की, लेकिन शाहजर की घुरी इतनी सख्त थी कि वो चुप हो गई। जब शाहजर को लगा कि वो पेट भर कर खाना खा चुकी है तो उसने खाना खिलाना छोड़ दिया, जिस पर अबान ने सुकून का सांस लिया। चल अब तुम्हारी बारी, तुम मुझे खिलाओ। नहीं, आप खुद खा लें। अबान जल्दी से बोली। क्या कहा मुझे? आभास नहीं है, फिर से बोलो। चेहरे पर सख्ती लिए वो एक बार फिर से बोला। मैंने कहा मैं खिलाती हूँ। अबान धीरे से मनमनाए। तो फिर खिलाओ ना, देर क्यों कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। शाहजर ने जल्दी से ट्रे उसके करीब की। मरती क्या न करती, आहिस्ता आहिस्ता उसे खाना खिलाना शुरू करे। बेबी, इतने छोटे निवाले अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से बनाओ। इस तरह तो मैं कल तक फारिग होऊंगा। उसकी बात सुनकर अबान ने थोड़ा बड़ा निवाला लिया और उसे खिलाने के लिए उसके मुंह के करीब ले गई। जब उसके हाथ की उंगलियां उसके होंठों से मस हुई, लेकिन शाहजर तो इस तरह खा रहा था जैसे फील ही ना कर रहा हो, और यहाँ अबान की जान पर बनी हुई थी। न जाने कितनी देर उसे खिलाती रही, और शाहजर था जैसे देख कर लग रहा था कि जिंदगी में पहली बार खाना खा रहा हो। अब बस करे ना, कितना खाएंगे? पता नहीं अल्फाज अबान के मुंह से कैसे निकले। अबान ने अपनी जबान दांतों तले दबाई, मगर अब तो निकल गए। क्या किया जा सकता था? अबान ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, जबकि उसकी हरकत पर शाहजर के कहके से पूरा कमरा गूंज उठा। वैसे बानी जानू, मेरा टमी अभी फुल तो नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम नहीं खिलाना चाहती तो मैं यहीं पर बस कर रहा हूँ। उसे इसी तरह हाथों में मुंह छुपाए छोड़कर वो नीचे बर्तन छोड़ने चला गया। जब वापस आया तब भी अबान इसी तरह बैठी थी। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा, शरारत से कहते हुए बैठ के दूसरी साइड पर बैठा। उफ, इतना तो खा चुके हैं, टमी है टंकी जो फुली नहीं हो रही। अबान ने दिल में सोचा, क्योंकि मुंह पर कहने की हिम्मत तो थी नहीं। जबकि शाहजर सोच रहा था कि इतनी ओवर ईटिंग के बाद अब उसका क्या बनेगा। पापा, मुझे लगता है हमें पुलिस रिपोर्ट करवानी चाहिए। गनवा को रह रहकर शाहजर पर गुस्सा आ रहा था, जिसने न जाने किस बात का बदला अबान से निकाला था।